हाँ तो ओके, लेट मी ओपन द डाउट्स. आपके जो डाउट्स थे, एक मिनट. एन एयरक्राफ्ट flies equal distance, है ना, यही क्वेश्चन था. Yes, sir. Share that question. Okay, this was the question, right? So an aircraft flies equal distance Yes, sir. southeast and then southwest to finish 120 kilometer due south of its starting point. How long is each part of its journey? Okay, so I think मेरे हिसाब से there is a problem of understanding the question, right? Yes, sir. Otherwise, there is nothing in this question. This seems to be difficult. So, an aircraft flies equal distance southeast. Southeast का direction कौन सा होगा? If suppose we are standing here, so southeast means, see, this is north, south, east, west, right? So southeast means this direction. No, southeast means this direction, right? Upward ऐसे जाएगा साउथ ईस्ट की तरफ, राइट. साउथ ईस्ट मीन्स क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा, ठीक है ना? Yes, sir. लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू पेन. दिस इज साउथ ईस्ट, राइट? ओके, देन साउथ वेस्ट to find finish. Okay, so let me trace the path first of all. So if the person is at if aircraft is at A and it takes equal distance southeast, so southeast means this way. No, south will be downward, bro, right? So this is southeast basically, right? In south direction and east side, basically this is southeast. So equal distance means, and then it takes southwest to finish. So southwest means this direction, right? Yes, sir. So this is southeast and this is in southwest direction. So the distance between them is, and they are taking equal distance. So the distance between them from the starting, the distance of aircraft from the starting point is 120 kilometer. So if you observe the the direction properly, this is 90 degree, right? Yes, sir. Because see, the direction are 90 degree to each other here in the question: north, south, west, east. So if they are taking southeast and then from that point to southwest, so that would be exactly 90 degree. Now what we have to find out, how long is each part of its journey. So that is basically, if you take one part as x, the other part Yes, would sir. be x. Simple. Yes, sir. So 2x square is equal to 120 square. Pythagoras. Yes, sir. So 2x square is equal to, you can calculate that, no? Calculate it. Yes. So if we remove square root, it's square.
it would be 120 upon root 2. This is the answer basically. Okay. Yes, sir. Done. So okay. Now let's take Yes. another question. Just a second. And this is the question, right? Yes, sir. So an aircraft it is vertically above a point which is 10 km west and 15 km north of a control tower. So if we consider this is the place where the control tower is situated, okay, then what they are saying, 10 km west, right? So 10 km west, this is 10 km, okay, 10 km west means toward left hand side, and 15 km north of a control tower. So 15 km north means, let's say this is 15 km, right? We know the direction of north, west, east and south, right? So based on that assumption we are taking this. So obviously this is 90 degree because the direction are again perpendicular to each other. So 10 km west and 15 km north of a control tower if the aircraft is 400 meter above the ground. So this is basically from this point above the ground, above the ground. So if I put it this way, above the ground, it is 400 meter means 4 km, right? So it shouldn't be that big. Basically, just Yes. 4,000 meter means 4 km, right? So above the ground is that way. Are you getting? Means somewhere like Yes, at sir. that point, the aircraft is above the ground, 4 km above. So what they are asking, how far is it from the control tower? ठीक है ना, ये कहाँ कंट्रोल टावर से कितने डिस्टेंस पर है, दैट वी हैव टू सर फिगर एक आउट. 400 मीटर वाला दोबारा समझाना. 400 मीटर वाला, ओके. तो यस सर. ये क्या, ये जो 400 मीटर है दैट इज अबव द ग्राउंड. आप समझ रहे बात? मतलब आप एक वेस्ट डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, आप जहाँ पे हो खड़े वहां से आप वेस्ट डायरेक्शन में जाओ 10 किलोमीटर, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जाओ, ठीक है, अर्थ पर. उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे पहुंचोगे तो उस ए से ग्राउंड के ऊपर, मतलब एयरक्राफ्ट कहाँ रहेगा, अर्थ पर तो नहीं रहेगा ना, स्काई में है, स्पेस यस. पर है, स्पेस में है. तो अबव द ग्राउंड मीन्स 4 किलोमीटर अबव द ग्राउंड आपको एयरक्राफ्ट दिखेगा. बात समझा आपको? मतलब आप 10 किलोमीटर कंट्रोल टावर पे आप खड़े हो, कंट्रोल टावर कहाँ पे है, अर्थ पर है, ठीक है. तो कंट्रोल टावर पे आप हो, वहां से 10 किलोमीटर आप वेस्ट चले जाओ, वहां से फिर 15 किलोमीटर आप नॉर्थ चले जाओ, फिर आपको दिखेगा कि एकदम एग्जैक्ट वर्टिकली एयरक्राफ्ट है. यही क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है. तो 4,000 किलोमीटर मीन्स 4 किलोमीटर ऊपर आपको एयरक्राफ्ट दिखेगा. तो देखो, इसलिए मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, अगर ये अर्थ है, ये जो प्लेन है ये अर्थ है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा. आप बात समझ रहे हो मेरा? क्योंकि अगर कोई भी परपेंडिकुलर ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर बोला है ना यहाँ पे, जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव मीन्स परपेंडिकुलर. आर यू गेटिंग दैट? सर ये जो लाइन है 4 किलोमीटर वाली, हाँ तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए थी ना, फिर तो हाँ. स्लांट तो नहीं था.
नहीं, अगर आप स्ट्रेट लोगे तब तो वो अर्थ पे ही आप रख रहे हो ना, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आप इस तरह से बोल रहे हो, ये ऐसे आप बोल रहे हो अगर, तब तो नहीं ये सर, दूसरी साइड, हाँ। दूसरी साइड सी की तरफ। हाँ ठीक है, अभी वो तो आप थोड़ा एंगल अगर आप बनाना कैसे भी बना लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलने का मतलब क्या है कि वो जो है वो 90 डिग्री पर है, ग्राउंड से 90 डिग्री पर है, वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, अभी ये नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं ना, अगर आप सपोज ये सरफेस है अपना 90 डिग्री, तो ऐसे दिखाओगे ना। लेकिन अभी अपना सरफेस कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो 90 डिग्री कैसे दिखाओगे, इस तरह से दिखाते हैं ना हम कभी, समझे? तो यस। ये अर्थ सरफेस है यहाँ पर, और ये यहाँ पे अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ये अर्थ सरफेस है, तो 90 डिग्री के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड आपका एयरक्राफ्ट है। अगर ऐसे आ रहा है आपका अर्थ सरफेस सामने, क्योंकि यहाँ पे दोनों डायमेंशन आ रहा है बेसिकली, एक तो 2D भी आ रहा है और बाद में फिर 3D कर दे रहा है ना। चलो अगर मैं इसको क्यूब की तरह समझा दूं, तो थोड़ा बहुत शायद से इजी हो जाए समझना। वैसे क्यूबिक नहीं है, अर्थ सरफेस क्यूबिक नहीं है, बात समझ रहे हो आप? बट यस सर। फिर भी मैं थोड़ा एक ट्राई कर रहा हूँ। अर्थ अर्थ ये क्यूब अर्थ नहीं है, इतना आप समझ लो, मैं बस ऐसे थोड़ा आपको बताने के लिए। तो समझो ये अर्थ सरफेस है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कंट्रोल टावर है, हाँ, इस पॉइंट पे, तो यस सर। यहाँ से आप पहले नॉर्थ जाओगे, हाँ, तो यहाँ से नहीं, नॉर्थ नहीं, वेस्ट जाओगे, 10 किलोमीटर वेस्ट गए, है ना। फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ गए, है ना। यस सर। फिर ऊपर आ गए, क्योंकि 4 किलोमीटर ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ एयरक्राफ्ट है। बात समझ गया आपको? यस सर। तो ये 10 किलोमीटर वेस्ट, 15 किलोमीटर नॉर्थ, एंड उसके 4। ऊपर 4 किलोमीटर पे अपने को एयरक्राफ्ट का पोजीशन दिया हुआ है। तो अब बता दो मुझे कैसे कैलकुलेट करो, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कंट्रोल टावर से ये डिस्टेंस कितना है ना। कंट्रोल टावर तो यहाँ पे था, तो कंट्रोल टावर से ये डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से तो बहुत ही इजी समझ में आ रहा है बात, क्योंकि मैंने आपको एक पोजीशन तो बता ही दिया कि कैसे वो ऊपर जा रहा है और ऊपर है। तो अगर मैं सब हटा भी दूँ तो भी आप समझ जाओगे, है ना। तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि वो डायरेक्शन वाइज जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, फिर उसके बाद नॉर्थ हो जा रहा है, तो 90 डिग्री हो गए। तो यस। आप ये कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला, क्योंकि वो पाइथागोरस से कैलकुलेट हो जाएगा। दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा बन गया। यस सर। तो ये पाइथागोरस से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पे ये जो है पॉइंट, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये तो अर्थ के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ी होती है, या कोई आप भी खड़े होते हो, तो मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर ही बनाते हो, है ना। तो ये भी 90 डिग्री है, तो जस्ट अबव बोला है, इट मींस इट विल मेक 90 डिग्री विद द अर्थ। तो जैसे आप ये एक लाइन ये कैलकुलेट करते हो, फिर ये भी 90 डिग्री है ना। यस सर। दोनों लाइन के साथ 90 डिग्री है, कंफ्यूज मत होना आप। मतलब अगर मैंने यहाँ बनाया, इसके साथ भी 90 डिग्री है, उसके साथ भी 90 डिग्री है, क्योंकि आप देखो अर्थ पे खड़े हो, ठीक है ना, ये दो लाइन है। अर्थ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, आप खड़े रहोगे तो उस लाइन पे परपेंडिकुलर ही रहोगे ना। यस सर। बात समझ में आ रहा है? अर्थ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी, आप जब खड़े होगे अर्थ पर, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही रहोगे, राइट। यस तो सर। यही बात है। तो जब ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों लाइन कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, अर्थ पे ड्रॉ हुआ है, और ये जो लाइन है ये अबव अर्थ है, राइट। अगर यस कुछ सर। भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर से ट्राई करेंगे समझाने की। नो सर, आ गया। आ गया ना। तो अभी ये आ जाएगा हमें, इसका क्या डिस्टेंस होगा, चलो मान लो s ले लेते हैं, ठीक है, और ये d मुझे कैलकुलेट करना है। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, राइट। यस सर। और फिर डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का तो मालूम है हमें 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 100 प्लस 225 प्लस 16, तो कितना हो गया ये? 341। 341, पक्की बात? यस सर। क्या बात है, कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट है। सो रूट 341, ठीक है। तो जो भी आंसर हो वो आंसर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भेजा था आपने। यस सर। पाई चार्ट का, ठीक है, 11th ना पाई चार्ट। यस सर। दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, वी आर गिवन पाई चार्ट illustrates the cells of various makes of petrol, ठीक है। what percentage of cells does SO have? देखो अभी ये कंप्लीट रोटेशन कितने एंगल का होता है, कोई भी सर सेट ये कर। फर्स्ट पार्ट हो गया था, इसके ना बी पार्ट के अंदर नहीं समझ आ रहा था मेरे को। ठीक ठीक है, तो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ जेट अकाउंट्स फॉर 12 1/2%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें ठीक से फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 2 24, यस सर। 25/2%, है ना, ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स यहाँ पे ये जो भी दिया हुआ है पाई चार्ट में, तो जेट का टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे, जेट अकाउंट्स फॉर 25/2% ऑफ टोटल सेल, कैलकुलेट द एंगल एक्स एंड वाई। तो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी एक्स एंड वाई दिया हुआ है, तो वाई का भी हमें डिस्कशन करना है। जेट का परसेंटेज दिया हुआ है, सो वाई अपॉन 360 into 100, right? So this is the percentage of jet, है ना। यस सर। तो कितना है, 25/2, ठीक है। तो इसको चलो कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इसको 25 4 हाँ, यस सर। और चलो अभी उधर सब ट्रांसफर करते हैं। तो 360/4 2 8, कितना हो गया ये, 45। हाँ 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो बराबर 45। 45, तो 45 डिग्री हो गए, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हो रहा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द एंगल एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 360 होते हैं, है ना। तो 45 प्लस 120 प्लस 81 प्लस एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस, सब बता दो मुझे ऐड करके कितना हो गया, 6 246। 256, इसको माइनस कर दो, 4 0
1, ठीक है। हाँ, सो 104 डिग्री हो गए। यस सर। ये कोशिश नहीं किए थे इसको सॉल्व करने का? इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर कर रहा था, समझ नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी। तो अभी क्या स्टार्ट करें? ये तो हो गया, फाइनल क्वेश्चन था ये। सर इंट्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन ना, वी ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शन। यस सर। ठीक है, जरा मैं देख लूँ आपका इंटरनेशनल आप फॉलो कर रहे हो ना, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स। यस सर। तो ठीक है, मैं जरा देख लूँ आपको क्या क्या है उसमें एक बार, उसके अकॉर्डिंग मैं जरा ले लेता हूँ। तो आई थिंक वी आर हैविंग रिलेशन। फंक्शन पेज नंबर बताओगे जरा, पेज नंबर कौन सा है? सर 383। यस 383। ओके, सो व्हाट डू यू नो अबाउट फंक्शन? आप पहले फंक्शन देखे हो, सुने हो, कभी पढ़े हो? यस सर। सो व्हाट डू यू नो अबाउट फंक्शन? आई सी, थिंक इट्स वर्किंग। that I explained you, like I took the real time example, right? यस So something is functioning, it means like in real world we try to uh, imagine the mathematical term function. So if something is यस सर। functioning, it will provide you single output, right? It will provide you one output for the particular input, right? So that is called function. तो आप में पोर्शन में देखो, वी हैव मेनी टू वन, वन टू मेनी, राइट? एंड द डिफरेंट ग्राफ एंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नोटेशन and composite function and reciprocal function, and we have absolute also, and we have inverse function. No, transformation. Okay, we don't have inverse function. Okay, so let me connect my tab, so क्योंकि उस पर लिखना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट? यस सर। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, जब तक
Okay. Okay, see, for function, if we are giving two sets, right? Like there is always a relation between two sets for the function. So if we have set x and y, okay, and if we take a relation as y is equal to x square, okay, small x is an element of this set x and y is an element of set capital Y, right? So if I take use this relation, we always have a relation, right, between the elements of the sets. So if we use this relation, what we'll get, like for 1 2 3 4, right? And in set Y, if we have 1 4 9 16, right? So we can map the elements here. So 1 will go to 1, 2 will map to 4, 3 will map to 9, 4 will map to 16, right? So this is how we can understand the function. This is basically a relation between two sets, right, and with their elements. So this is one scenario where you can see each element of x is related to each element of y basically here. Right. So uh, in this case, now this is first scenario. Now if I put second scenario here, saying the relation between the elements is y is equal to, or y square is equal to x, right? Y square is equal to x. So if I put the elements inside this, which is 1 4 9 16, and the corresponding elements would be here as far as this relation is concerned. So that is plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3, plus 4. चलो ठीक है, प्लस 4 नहीं लिखते, हमको इतना ही जगह है. So is what would be the mapping here? So the mapping is, it will go, one will go to 1 and minus 1. Do you understand this? Because square root of 1 is plus and minus 1 both, right? If we have like 1 square, so if we suppose put x is equal to 1, are you getting? X is equal to 1. So what would be the value of y? So y would be, प्लस माइनस रूट वन, ठीक है ना? तो प्लस माइनस वन, क्योंकि अगर आप माइनस वन का भी स्क्वायर करोगे यू विल गेट वन, एंड प्लस वन का भी स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट वन. आर यू गेटिंग? सो द स्क्वायर रूट ऑफ वन इज माइनस वन प्लस वन, राइट? तो इस तरह के मैपिंग यहाँ पे हो जा रहे हैं. 4 विल मैप टू 2 as well as minus 2. 9 will map to 3 as well as minus 3, right? So this is second scenario. So you can observe that we have, if I put another scenario without any, like, giving you the formula of relation like this. If you have third scenario where the elements, A, B, C, okay, E, F, G. So A maps to E, B also maps to E, C maps to F. Okay, so these are three different scenario you can observe. So which each one are a relation basically. Some sort of relation is there between them. So relation is basically, we simply write a set which include the ordered pair of the elements. ठीक है? Order pair क्या होते हैं? जैसे कि अगर मुझे relation लिखना है, if I need to write the relation here, so the relation, like here in this case, so the relation set is denoted by R sometimes, okay, and you can write all the ordered pair, okay. So the relation is basically set of ordered pair. ठीक है, मैंने क्या बोला? Ordered pair, ठीक है. तो यहाँ पे क्या ऑर्डर्ड पेयर हो रहे हैं? 1, 1, ठीक है. सो फर्स्ट वी राइट द एक्स एलिमेंट एंड देन कॉमा वाई एलिमेंट. जैसे कि हम कोऑर्डिनेट एक्सेस में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना किसी भी पॉइंट का. सो 2, 4,
3,9 and 4,16. So ये relation है. I think we can write relation for these two sets also, like these two scenarios also. Okay. So relation we can write, but relation is not a function. Function is what? If you observe the second scenario, we are getting two outputs for one input, right? यहाँ पे देखो आप दो आउटपुट मिल रहा है एक इनपुट के लिए. मीन्स अगर Yes, आप sir. वन डाल रहे हो फंक्शन में, सो व्हाट यू आर गेटिंग +1 एज वेल एज -1. अगर आप 16 डाल रहे हो फंक्शन में, सो यू आर गेटिंग +4 एंड -4, right? So you are getting multiple output. So for one element we are getting multiple output. So this is called one to many relation. Okay, this is called one to many relation, and this relation is not a function as far as the function in maths is concerned, because we know that in the last class only I told you the function should not have more than one output for the particular input, right? Whereas like in the third Yes, sir. scenario, two inputs have same output, right? So it can be a case like, so this case is basically many to one. It can be a case where two inputs will give you one output. So जो definition है, core definition जो है वो क्या है? For a particular input we should get an output, we should get single output. ठीक है, तो A के लिए भी देखो आपको एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है ना? बी के लिए भी आपको सिंगल आउटपुट ही मिल रहा है. वी आर नॉट गेटिंग मल्टीपल आउटपुट. ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो किसी भी नंबर का, like in this scenario, if you find out the square root of any number, what you get? Like if I find out the square root of 4, what we get? +2 -2. No, in calculator what we get? We get only +2. See what relation I have written here. I have written y square is equal to x, right? And what we write inside calculator, we simply write y is equal to root x. Okay, so y is equal to root x is a function because we get single output for the particular input. We are not getting plus and -2. Have you ever checked that? To find out the square root of any number in calculator, you can do that. We get single output, right? As 2, we don't get -2. It means y is equal to root x is a function, whereas y square is equal to x is not a function. अब एक बात समझो, ये दोनों चीज अलग अलग है. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो दोनों टर्म्स लिखे हैं मैंने, ये दोनों अलग अलग है. y square is equal to x is basically, if you find out y, you will directly put plus and minus root x, because then you will take square root algebraically. But if you write y is equal to just plus root x, it means you are taking only one output. So y is equal to root x is a function, whereas y square is equal to x is not a function. That was trick which I always use to explain the function basically. ओके, तो ठीक है, अभी धीरे धीरे आप और समझोगे व्हेन आई स्टार्ट द ग्राफ ऑफ दिस. ओके, चलो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, देन बेस्ड ऑन दैट यू विल अंडरस्टैंड द फंक्शन, राइट? सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हैव यू एवर सीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कोई भी. So x² + 4x + 8. हाँ ठीक है. See, first of all understand what is quadratic equation. So quadratic equation is ax² plus bx plus c, right? This is quadratic equation, right?
इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा, ये उसका जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, दैट मस्ट बी 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी 2, राइट। इफ द डिग्री इज 1, उसको क्या बोलते हैं? इफ डिग्री इज 1, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बेस आप स्ट्रॉन्ग करो। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर बोलते हैं, अगर डिग्री 3 हो गए तो क्या बोलते हैं उसको? क्यूबिक बोलते क्यूबिक। हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा आप देख लो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू सेड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, राइट। तो आपने ये बोला। अभी इसको हम चलो स्केच करते हैं। ओके, विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, राइट। सो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? कैसे करोगे आप इसको? ग्राफ को अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? चलो, लाइन तो आप इजिली ड्रॉ कर लेते हो। लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम है? अगर मैंने y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, प्लस 3 किया, तो आप इजिली लाइन ड्रॉ कर लेते हो, करते हो कि नहीं? इसमें कोई इशू है? यस सर। कैसे करते हो? नो सर। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हो आप? यू टेक सम पॉइंट्स, सर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, राइट। सो वी फाइंड आउट सम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस ग्राफ, राइट। तो आप एक रैंडम पॉइंट्स ले लेते हो और उसको फिर प्लॉट कर देते हो, एंड यू विल फाइंड द ग्राफ ऑफ दिस गिवन फंक्शन विच इज लीनियर, राइट। अगर मुझे क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करना है तो भी आप वही करोगे, कोई प्रॉब्लम, कुछ डिफरेंट तो है नहीं, वही करोगे। लेकिन चलो ठीक है, उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको पता है? completing the square. If suppose we are giving 1 and this second term, right? तो चलो मैं इसको ना इजिली आपको बता दूं कि ये क्या होगा। अगर f of x is equal to, you know, x plus just a second, f of x is equal to x square plus 4x plus 4 plus 4, right? तो अगर ये टर्म मेरे पास आ जाते हैं, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पता है या? कंप्लीटिंग कैसे करते हैं स्क्वायर, यस सर। पता है? यस सर। ओके, तो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट थर्ड टर्म, व्हाट वी यूज, मिडल टर्म द होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट सेकेंड टर्म है, सो हाउ वुड आई फाइंड द थर्ड टर्म? सो थर्ड टर्म इज बेसिकली 4x द होल स्क्वायर upon 4 into first term, right? So this would be 16x square upon 4x square, so 4, right? So third term क्या मिला हमें? 4 मिला। तो इसलिए मैंने 8 को स्प्लिट कर दिया है 4 प्लस 4 में, ठीक है। 8 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 यस प्लस 4 सर। में, राइट। So that the third term will be used as to complete the square. So this will be x plus 2 the whole square plus 4, ठीक है। चलो अभी मैं इसको यस सर। ग्राफ अगर मुझे करना है तो ये बहुत इजी हो गया ग्राफ। अगर आप x इज इक्वल टू -2 डालते हो, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, यस सर। राइट। सो -2 एंड 4 जो होगा वो वर्टेक्स होगा, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से इसका नेचर रहेगा। अगर x का वैल्यू 0 डालते हो तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो ये y इंटरसेप्ट उसका 8 हो जाता है। वाई सर, वाई इस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ही। हाँ, मतलब अगर एक मिनट मैं ड्रॉ करूँगा ठीक से। हाँ चलो ठीक है। अभी अगर आप x इज इक्वल टू 0 डालते हो, सो यू विल गेट द y इंटरसेप्ट, है ना।
अगर इसी में आप x इक्वल टू 0 डाल देते हो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, 4 + 4 8 हो जाएंगे। तो आपको क्या मिल रहा हो, y इंटरसेप्ट आपको 8 मिल जा रहा है ना। और वर्टेक्स क्या मिल जा रहा है, -2, 4। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है ड्रॉ करना। वंस यू कन्वर्ट दिस इन वर्टेक्स फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है, तो वर्टेक्स फॉर्म में आप जैसे ही कन्वर्ट करते हो बहुत सिंपल होता है। अब मैं आपको ये सब सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। तो एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर आप ना एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो विच passes through the given graph, and if it intersect the graph at one point, each vertical line intersect the graph at single point, it means the given graph is a function. Okay, so this is called the vertical line test. अगर मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ, ठीक है, आप बोलोगे अच्छा कौन सा लाइन नहीं, अगर ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर ये मल्टीपल पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा। एक मिनट क्या हो जा रहा है इसका। ठीक है, चलो एक और दूसरा सिचुएशन देता हूं मैं, जिसमें अगर मान लो वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, ये एक ग्राफ है। सो वेदर दिस इज फंक्शन और नॉट, लेट मी नो। ये फंक्शन है, तो आप सीधा वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करो ना, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे विच पासेस थ्रू द ग्राफ। ठीक है, आप एक वर्टिकल लाइन मींस परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्स एक्सिस। ये बात समझ रहे हो ना आप, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो विच पासेस थ्रू द गिवन ग्राफ, एंड इफ इट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, इट मीन्स द गिवन ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट। जैसे अगर यहाँ पे आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करो, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना, कोई भी लाइन, वर्टिकल लाइन, दैट शुड बी वर्टिकल, एंड वर्टिकल मीन्स ईच लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, if you draw vertical line, it will intersect the curve at single point, it means the given curve is a function. Why? Because for each x value we are having one and only one y value. अगर आप एक vertical line draw करते हो, let's say this is vertical line, right? So it intersect the curve at single point. So for each x value we are having one and only one y value, right? So this is the meaning of vertical line. Now, but for this curve, if we have drawn vertical line, so it will intersect the curve at 2 points. It means for each x value, we are having 2 corresponding y value, right? तो जैसे मैंने आपको फंक्शन में ही बताया कि आउटपुट तो नहीं होने चाहिए। सिंगल इनपुट के लिए, फॉर द सिंगल इनपुट should not have more than one output, right? Are you getting? Yes, yes. ठीक है, तो चलो सिंपली अगर मैं लिख दूं what is function, so how would you define? If I simply put the definition of function, how would you define? What is function? So how would you define that? So function means for all elements in x. So this is a symbol of for all, right? For all elements of x belongs to x, okay, there must be one and only one element in of y. y. ठीक है, so this is called function. तो one to many to one is okay, क्योंकि many to one में सिनेरियो क्या आ रहा है, एक ही आउटपुट हो रहा है ना, मेन आउटपुट पे फोकस रहो। और ये जो फॉर ऑल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा दो सेट दे दूं जिसमें ए बी सी डी और ई है, और दूसरा एक सेट दे दूं जिसमें पी क्यू आर है, ठीक है, और मैपिंग मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैपिंग इस तरह से कर सकता हूँ। एंड इफ आई लीव ई एज इट इज विदाउट इट्स इमेज, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स को इमेज बोलते हैं, मीन्स पी इज एन इमेज ऑफ ए, ठीक है, तो बी के बी इमेज पी है, सी का भी इमेज क्यू है, डी का भी इमेज क्यू है, ठीक है, और ए इस सेट को प्री इमेज बोलते हैं, मतलब पी का प्री इमेज क्या है, पी का प्री इमेज क्या है, ए एंड बी बोथ, ठीक है, क्यू का प्री इमेज क्या है, सी एंड डी बोथ, ठीक है। तो ये सब थोड़े टर्मिनोलॉजी है। तो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा था कि फॉर ऑल, तो यहाँ पे ई एलिमेंट्स इज नॉट हैविंग एनी इमेज in set y, right? Are you getting this? Element e Yes, does sir. not have any image, ठीक है ना, it means this, ये जो definition है function का for all is ruled out here, so this is not function, ये भी एक restriction है, आप बात समझ रहे हो, ये भी एक restriction है। अब सबसे important बात इसमें आती है कि अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया, ठीक है, तो उसमें डोमेन एंड रेंज क्या है, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। चलो अभी अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया लाइक दिस x and the other element is like the other set is y, चलो अभी मैं 1 2 3 और यहाँ पे A, B, C, D. If I map here, 1 maps to A, 2 maps to B, and 3 maps to B. Okay. So what is domain in this function? First of all, let me know whether it is function or not. चलो आप बता दो मुझे ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन Yes, है sir. तो क्यों है, फंक्शन है तो क्यों है, ये भी बताओ। क्या क्या कंडीशन है सर ए की वैल्यू है, सर इन सब की एक्स की इमेज है। सबसे पहली बात तो फॉर ऑल जो कंडीशन है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स मस्ट हैव इट्स इमेज इन वाई, ठीक है, सबसे पहली बात। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है, यही दो बात आपको चेक करना है। पहली तो जितने भी एलिमेंट्स है एक्स के, वो सबका एक इमेज होना चाहिए वाई में ऑब्वियसली, और सबका एक ही इमेज होना चाहिए। एक ही मतलब ईच वन ऑफ देम विल हैव वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स इन वाई। तो वन को अगर आप देखते हो यहाँ पे वन एलिमेंट वन, इट हैज एन इमेज ए। टू को देखते हो तो टू को बी ही इमेज है, टू को और कोई दूसरा इमेज नहीं है, ठीक है ना, बी ही है, एक ही इमेज है। फिर थ्री को आप देखते हो तो थ्री का भी एक ही इमेज है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज all elements in set x, so simply set x लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। डोमेन क्या हो जाएगा, set x, ठीक है। और को डोमेन, इसमें देखो तीन चीजें, नॉर्मली थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। रेंज भी होता है, को डोमेन भी होता है। को डोमेन यहाँ पे सेट y है, ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लो, बहुत जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज को लेके। को डोमेन क्या होगा, सेट y है। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y विच हैज इट्स प्री इमेज, समझे, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, a, b, बस, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y तो यहाँ पे a और b ही है, c और d का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है। तो रेंज के बात ध्यान में रखो, क्योंकि बुक में देख रहा हूँ आपके सामने, मेरे सामने रखा है बुक, उसमें आपको सेट सिर्फ रेंज और डोमेन बता दिया है, फिर बाद में आप फंस जाओगे कहीं पे भी, ठीक है।
तो डोमेन जो होता है वो सेट एक्स होता है, को डोमेन सेट वाई होता है, पूरा सेट, ठीक है। और रेंज जो होता है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई विच हैज इट्स प्री इमेज। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अभी क्या दिया है आपके बुक में, तो ये डोमेन रेंज तो चलो आप समझ गए, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक सिंपल ग्राफ दे दूं, ठीक है, एक सिंपल ग्राफ दे दूं, चलो, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो अभी एक ग्राफ यहाँ पे मेरे सामने है, वैसे बुक आप देख रहे होगे मेरे ख्याल से, तो मैं इस एक्सरसाइज का दे देता हूँ, एक्सरसाइज में भी, ठीक है। चलो मैं अपने मन से दे देता हूँ। आप बुक देख रहे हो क्या? नो सर। अच्छा ठीक है। तो चलो ये ग्राफ है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम ग्राफ है, हाँ। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एरो दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ सको कि ये जो ग्राफ है वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना, एक्सटेंड कर रहा है, एरो का मतलब, ठीक है। आपके बुक में भी देखो एरो यूज किया हुआ है। एरो का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिर्फ एरो एरो ना दूं तो आप में भी एक पॉइंट आता है कि आप सोचो कि ये इतना ही पॉइंट, इतना ही पार्ट है ग्राफ का, बट एरो देने से क्या होता है कि वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, इसमें एक मैंने बहुत ही, एक्चुअली आपका क्वाड्रेटिक और ये सब है, लेकिन मैंने आपको एक अलग ही ग्राफ दिया हुआ है, डोमेन एंड रेंज बताना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताओ डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। सो व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, पहले तो वो बताओ मुझे, डोमेन क्या होता है? तो सेट ऑफ एक्स जिसके अंदर उनकी एक वैल्यू हो। हाँ, तो ऑल पॉसिबल, नहीं नहीं, क्योंकि एक वैल्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि डोमेन को आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हो, अगर आप छोड़ोगे इसका मतलब फंक्शन ही नहीं होगा फिर। सो ऑल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स, दैट इज डोमेन, ठीक है। मैं एक फिर से डेफिनेशन दे रहा हूँ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना। और रेंज होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। मेरा टैब ही नहीं कनेक्ट हुआ आज, पता नहीं क्यों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। तो अभी आप मुझे बता दो ये ग्राफ में डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। एक्स तो ये होता है, वाई ये होता है, चलो वो भी मैंने आपको बता दिया, पता ही होगा उनसे। तो बता दो डोमेन क्या होगा इसमें। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ये ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा है। और ये यहाँ पे देखूं तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, चलो मैं थोड़ा सिंपल कर दूं पहले, उसके बाद दूं डिफिकल्ट। चलो अभी एक लाइन में दे दिया आपको ऐसा, ठीक है, ये एक लाइन है। तो अभी इसका बता दो मुझे, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस है, एक लाइन ड्रॉ किया है, आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये इंक्रीज होते चले जाएगा और यहाँ से भी वो डिक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू एक्स का डाल सकते हो ना, इट विल टेक एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि बोथ साइड इट इज एक्सपैंडिंग। आप बात समझ रहे यस हो मेरा? सर। देखो लाइन, लाइन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है ना वो। लाइन जो होता है, अगर मैंने एरो डाल दिया है तब तो इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू एक्स का यहाँ पे डाल सकता हूँ ना, अगर आप मान लो, चलो अभी कोई भी लाइन का इक्वेशन में दे दूँ आपको, लाइक y इज इक्वल टू 2x+3, आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। थोड़ा हो सकता यस है सर। ग्राफ में आपको दिक्कत हो रहा हो, बट अगर मैंने इक्वेशन ही दे दिया, मान लो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+3, तो आपको मैं बोलूँ x, के कौन कौन से वैल्यू इसमें डाल सकते हो, तो x का तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो,
अगर 1 लाख डालना है, 2 लाख डालना है, एनी 1 मिलियन, 3 मिलियन, कुछ भी डाल सकते हो ना आप एक्स का, एक्स के जगह पे। आर यू यस गेटिंग? सर। इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर एक्स? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एक्स, यू नो कैन सर। पुट एनी वैल्यूज फॉर एक्स। तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इट मीन्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, बट आप रियल नंबर ही डालोगे, ठीक है। और बाकी इमेजिनरी के बारे में तो आपको पता नहीं, तो क्या डालोगे आप? सिर्फ रियल नंबर डालोगे। तो ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर का क्या है एक्सपेंशन? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ऑल रियल नंबर का एक्सपेंशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसका डोमेन और रेंज पूछूं, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। तो आप सिंपली यहाँ पे ऑल रियल नंबर लिख दो, ठीक है। R stands for all real number. So you can write like x belongs to real number. ठीक है ना? X belongs to real number. So we can put any values for x, and you will get in all values for y also. So y also belongs to real number. ठीक है ना? अगर y का भी आप देखो, देखो आप ग्राफ में क्या हो रहा है, y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है। यस सर। तो ऑब्वियसली आप कोई भी वैल्यू y की जगह पे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसका यस सर। रेंज क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। यू विल गेट ऑल वैल्यूज फॉर y, राइट। अगर आप थोड़ा इसको ठीक से समझना चाहो, तो यू कैन चेंज द इक्वेशन। तो y माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अभी ये जो मैंने इसको क्या क्या समझ रहे हो आप? मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया है, देखो यहाँ पे y माइनस 3/2, ठीक है ना। मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया है, एंड वी आई फाउंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इसी को मैंने चेंज किया, आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? देखो y 3 को मैंने ट्रांसफर किया, y माइनस 3, और फिर 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो y माइनस 3/2। तो x का वैल्यू क्या है? y माइनस 3/2। तो इस इक्वेशन को देखो, वी कैन पुट एनी वैल्यूज फॉर y। आप कोई भी यस वैल्यू सर। y पर डाल सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आप बोलोगे कि फिर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे हम वैल्यू नहीं डाल सकते? आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ठीक है, अगर मैंने आपको ऐसा दिया y इज इक्वल टू 2/x-3, ठीक है ना। अगर मैंने ये इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 2/x-3, तो यहाँ पे आप कौन सा वैल्यू x के जगह पे नहीं डाल सकते? 0। नहीं नहीं, 3 नहीं डाल सकते हो ना आप। अगर आप 3 डालते हो, इफ यू पुट 3 हियर एट x, व्हाट विल हैपन? 3 - 3 0 2। 0 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। और कैन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0? यस सर। No, na. So नो। it would be defined in real scenario. It is infinity, यस सर। right? तो यहाँ पे आप 3 नहीं डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप इस फंक्शन के लिए ये नहीं बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप बात समझ रहे हो मेरा? तो ये डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 3 नहीं डाल सकते हो वहाँ पे। अगर आप 3 पुट करते हो, इफ यू सब्स्टिट्यूट 3 देयर, द फंक्शन वोंट बी डिफाइंड। क्योंकि आप कैलकुलेटर में भी चेक कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 0 इज मैथ एरर, it is not defined, right? So you cannot put x is equal to यस 3 in सर। this. So what we'll do, what would be the domain of this function? Domain of this function is x belongs to real number except 3. So x is not equal to 3, so you have to put the restriction also. Are you getting? आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, बट यस 3 सर। नहीं डाल सकते हो। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट 3, ठीक है। तो ये चलो थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ यस। डोमेन और इसको लेके। नेक्स्ट क्लास में विल एक्सटेंड द टॉपिक, ओके। यस सर। समझ में आ रही बात आपको? थोड़ा बहुत मैं इधर उधर से बताने की कोशिश किया हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए डोमेन यस के, सर। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, यस सर। ओके, बाय बाय।
बाय सर।